मुझे ये पूछना है आपसे कि रिकंस्ट्रक्शन और प्लास्टिक सर्जरी, आर दे द सेम थिंग, एंड इफ एट ऑल देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस लाइक? प्लास्टिक सर्जरी इज अ स्पेशलिटी. रिकंस्ट्रक्शन वो है जो प्लास्टिक सर्जन या सर्जन्स हु ऑपरेट ऑन माउथ कैंसर डू. बट यू नो, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है जो हमने अपने बचपन में देखा था बिकॉज ऑफ हर हाइनेस मिस एकता कपूर के changes the man, changes the female completely. No, that's not plastic surgery. कैंसर पेशेंट्स में दूसरे बॉडी से अगर डोनेशन लेना है तो इम्यूनोसप्रेशन करना ही पड़ेगा. इट इज द सेम रूल. कैंसर ऑलरेडी इज एन इम्यूनोसप्रेसिव फिनोमेनन इन द बॉडी. वो ग्रो एक जगह होता है मगर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को धीरे धीरे इम्यूनोसप्रेस करने की कोशिश करता है. In terms of the identity or in terms of the appearance of the person, will that part, when it is fixed in the tongue, will it be very prominently visible? There is a color difference, or how do you set it right? We don't set it right. Okay. The body sets it right. Negotiating and adaptability जो भगवान ने ह्यूमन बॉडी में दी है, it is surpassing every other function of your body. That fighter, that individual, that freedom to express himself or herself in the society. कैंसर सर्जरी सुनते ही पेशेंट के दिमाग में चालू हो जाता है कि कोई एक पार्ट रिमूव होने वाला है. मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट इज ट्रू. थिंक अबाउट इट. The part that is getting removed is specially from your face, from the head, from the mouth or from the neck. छोटा सा भी कोई चीज यहां से वहां हो जाता है, पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. People start staring at you differently, people start looking at you differently, you start feeling differently. इस पूरे context में if something can come to your rescue or come to the patient's rescue, it is rebuilding the part that is being removed. और ये रीबिल्डिंग वाला जो पार्ट है, वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन दैट सेगमेंट इज विथ अस टुडे, डॉक्टर रचिता बाहेती. आई वेलकम हर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस. एंड मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हेन वी एंटर इनटू द सेगमेंट इमीडिएटली कि ये जो रीबिल्डिंग ऑफ द रिमूव्ड पार्ट जो होता है, इसी को आप लोग रिहेबिलिटेशन कहते हो क्या? Well, yes. I like the tone of the question. Architects, rebuilding, you know, there's a lot of supremacy associated with that. We definitely are very humble about it. But rebuilding, restoring जो words आपने use किए, वो rehabilitation के साथ synonymous है. Any surgery done to an individual is challenging to a cognitive level to that person. It is challenging to a mental level, to a physical level also. Right. When the surgery is around face, उनके identity, उनकी smile, उनकी जो पहचान है, वो structures के आसपास वाली surgeries जो mouth cancers के लिए की जाती है, I will say it is challenging 2x. Identity और पहचान is the most important thing for any individual, right? Unfortunately, ये challenge is underestimated. It is underestimated by people and it is underestimated by some doctors of our fraternity also. वो ये norm release करते हैं cancer surgeries में कि cancer surgeries तो life saving होती है, identity का क्या है, वो नहीं बन जाएगी. ये समझना बहुत जरूरी है कि identity restoring is equally important to treating the tumor also. Correct. So for us, for me, rehabilitation अगर मैं एक sentence में बोलूं is giving back that cognitive, physical and mental ability of that patient, maintaining that cognitive, physical and mental ability at the same level which I have given back. वो surgically जो independence उस patient को मिलनी चाहिए, वो हम उनको earliest दे दें. That's rehabilitation and I take it extremely seriously for all my patients, all my mouth cancer patients. And the ultimate goal is that we give that survivor, that fighter, that individual, that freedom
to express himself or herself in the society. That's the power of rehabilitation. I take it extremely seriously for my patients. तो जैसे आपने कहा, आई थिंक अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड सो फार, रिमूविंग दैट ट्यूमर इज जस्ट हाफ द बैटल, और उसके बाद आपका पेशेंट को आपको जो देना है, द रीबिल्डिंग, द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एंटायर थिंग, आप कब प्लान करते हो? डू यू प्लान इट वेल इन एडवांस बिफोर द एंटायर सर्जरी स्टार्ट्स, कि रिमूवल का सर्जरी होने के बाद फिर रीबिल्डिंग का प्लानिंग शुरू होता है? That's the misconception what is floating around outside कि rehabilitation होते रहेगा बाद में, या rehabilitation can follow the treatment. No, that's not the way it is. When do I plan the rehabilitation? There is a patient walked in my cabin, examination stool पे उनको बिठाया जाता है. The next step is I talk to the patient. जिस तरह से वो सवाल और जवाब के कॉन्वर्सेशन में अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, जैसे उनकी वॉइस निकल के आ रही है, जैसे वो बात कर पा रहे हैं, उससे मुझे एक ब्लूप्रिंट सेट हो गया है. प्राइमरी. सेकेंडरी, व्हेन आई वेयर माय ग्लव्स, टेक अ टॉर्च एंड स्टार्ट चेकिंग द प्रॉब्लम एरिया, that this is the area, this is the stage, that is the blueprint that I make in my head. That's when I plan my rehabilitation. तो विजुअलाइजेशन स्टार्ट्स Visualization starts during examination. And वो rehabilitation का process जो हम primarily plan करते हैं, उसको हम 99% change नहीं करते हैं. And I execute that blueprint जो मैंने से visually plan किया है next day or the day after whenever I'm operating. राइट. Secondly, you asked कि tumor removal is half the battle. राइट. Tumor removal is half the battle. That's true. But as a cancer surgeon, ना body से tumor निकालना इतना technically challenging है. आई एम श्योर. I'll give you an example. हम tumor निकालते निकालते नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को बिना सैक्रिफाइस किए क्लीन सर्जरी करने का एम रखते हैं. एट द सेम टाइम हम जितना हम रेडिकली उसको निकाल सके ताकि माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ पीछे ना रह जाए, वो भी एम करते हैं. सो इट्स लाइक, यू मस्ट हैव सीन दोस एक्ट्स ऑन द रोड जिसमें वन गर्ल इज वॉकिंग ऑन द रोप. देयर इज अ थिन रोप. Yeah. There's a person walking, it's a girl or it's a man walking on the rope, and they have a huge heavy stick. Correct. They're trying to balance Yes. their body, they're trying to maintain their form on that rope. Yeah. That's exactly what we do. Right. That's the tumor removal of cancer. The simple terms में अगर किसी को समझाना है तो. So after that 50% of battle won, Right. we start the rehabilitation process जो हमने primarily सोचा था. before surgery at my clinic, at my OPD chamber सोचा है, and पेशेंट के रिलेटिव्स को कम्युनिकेट काउंसिल करके समझाया भी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव अ लॉट ऑफ रेफरेंस इमेजेस व्हिच आई शो देम कि इट कैन बी लाइक दिस, ये ऐसा हम कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. एट द सेम टाइम नो प्रोमिसेस एंड नो गारंटी. ऑफ कोर्स. राइट. बट दैट्स माय रिहैबिलिटेशन वे ऑफ डूइंग इट. So you're walking on the tightrope of surgery. One hand is the structure, one hand is the function. Yeah. That's the balance you have to keep maintaining. Yes, that way. जैसे हमने कहा, walking on the tightrope and having structure in one hand and function in the other hand, and trying to balance between both the things. So when I did my research about, before asking you all these questions, when we consider structure एक तरफ and function एक तरफ, मुझे ये पूछना है आपसे कि reconstruction और plastic surgery, are they the same thing? And if at all there's a difference, what's the difference like technically? Right. Plastic surgery is a specialty. Reconstruction वो है जो plastic surgeons या surgeons who operate on mouth cancer do. So that is one myth जो solve करना जरूरी था. Right. Reconstruction and plastic surgery are used very loosely, synonymously to people for them to understand. उनको समझने के लिए ये बोलते हैं हम कि इसी सर्जरी में हम प्लास्टिक सर्जरी भी करेंगे, so they understand better, right? But you know, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है जो हमने अपने बचपन में देखा था because of Her Highness Miss एकता कपूर के
changes the man, changes the female Yeah. completely. No, that's not plastic surgery. आज भी लोग वो माइंडसेट से आते हैं मेरे पास. मुझे मेरे रिसेंटली एक पेशेंट के पिताजी ने बोला कि मैडम आप फिर प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और मैं अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं उसको ढूंढूंगा कैसे. Right. And then it was a very innocent way of Yeah. them understanding it, but उनको फिर ground level, grassroots level पे जाके I made them understand. So let's understand what is reconstruction. Right. Reconstruction is, as you said in your context, rebuilding. Simple है. Right. Imagine एक 2 BHK है, एक 3 BHK या 2 BHK है, बहुत टाइम से बंद है, उसमें एक रूम कंप्लीटली खराब हो गया, चार्ड, सीपेज, Correct. एवरीथिंग इज बैड अबाउट इट. आप जाके पूरा घर डिमोलिश नहीं करेंगे, आप मे बी वो रूम रिफर्बिश करेंगे या मे बी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. Right. रिकंस्ट्रक्शन इन हेड एंड नेक कैंसर इज सेम. हम जब किसी चीज को रीबिल्ड करते हैं, हम वो प्रॉब्लम एरिया को ही रीबिल्ड करते हैं. Right. रेस्ट ऑफ द फेस एंड रेस्ट ऑफ द माउथ इज ऑलवेज अनटच्ड. Correct. So one part of rebuilding is called reconstruction. Right. तो जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर घर का आपने एक एनोलॉजी दिया एंड देन वन सेगमेंट ऑफ द हाउस शायद थोड़ा सा गिरा हुआ है एंड देन उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, राइट? तो जैसे घर ब्रिक से बना होता है, सेम वे इफ यू कंटिन्यू विद द एनोलॉजी, व्हेन यू डू अ रिकंस्ट्रक्शन इन द बॉडी, वो कैसे होता है, किस चीज से होता है, आप क्या रिकंस्ट्रक्ट करते हो, यूजिंग व्हाट मटेरियल? So we harvest something known as flap for reconstruction. FLAP. Flap is basically a composite unit जिसमें skin, muscle and fat होता है. Patient की खुद की body से वो harvest किया जाता है and we use it to close the defect that is created because of tumor removal. राइट. Every tumor removal creates a defect. उसी डिफेक्ट को हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी यूज दैट फ्लैप एंड एनी एंड एवरी फ्लैप इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स ओन बॉडी. तो एग्जैक्टली वो फ्लैप कैसे निकाला जाता है एंड आप चूज कैसे करते हो कि कहाँ से निकालना है और कौन सा टिश्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट? Right. So, universe is being miraculous and has created donor sites in your body, in my body, in everybody's body. हमारे पास अनगिनत डोनर साइट्स है. Every site is a donor site. And ये भगवान ने क्रिएट किया हुआ है. We harvest it from a different site. उस टिश्यू के साथ उसका मसल, उसका नर्व एंडिंग्स एंड उसके सप्लाई होने वाले ब्लड के पाइप्स साथ में हार्वेस्ट किए जाते हैं एंड इन अ वेरी सिंपल वे वी कनेक्ट दैट इन द डिफेक्ट एरिया. सो जहां से निकाला जाता है वो फ्लैप, दैट्स कॉल्ड अ डोनर साइट. Right. It's donating you. Your body is donating you. The part that is receiving is called a recipient site. राइट. So we have two sites created. And as going back to your question, हाँ, हम एक distant site पे surgery करके वो flap donate करवाते हैं अपनी body को and उसको वहां पे fix कर देते हैं at the defect. Why do I say it is a distant site? Because it is a site which is other than face and neck most of the times. But कभी कभी face भी एक flap बन सकता है. ओके. तो फेस पे देर आर 7-8 zones on your own face जो डोनर साइट्स बन सकते हैं जहां से फ्लैप्स हार्वेस्ट किए जा सकते हैं माउथ के डिफेक्ट के लिए. फेस और माउथ बहुत पास पास है, सो इट्स कॉल्ड अ लोकल फ्लैप बिकॉज हम लोकली ऑपरेट कर रहे हैं. राइट. अगर मैंने थाई या लेग या फोरआर्म से कोई फ्लैप हार्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है, इट्स कॉल्ड अ डिस्टेंट साइट, सो इट्स अ डिस्टेंट फ्लैप. राइट. बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि एक डोनर साइट है, एक रिसिपिएंट साइट है, आपकी खुद की बॉडी है जहां से वो हार्वेस्ट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड इज कि हाउ डू वी चूज दिस, हाउ डू वी चूज अ फ्लैप, राइट? गोइंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड मी कि रिहैबिलिटेशन कब शुरू होता है, जब मैं पेशेंट का लोकेशन ऑफ ट्यूमर
पेशेंट के ट्यूमर का डिमेंशन, पेशेंट के ट्यूमर का साइज एंड हाउ मच इज इट आउटग्रोन, ये सारी चीजें जब मैप करती हूँ तब मैं डिसाइड करती हूँ कि दिस इज द फ्लैप दैट इज गोइंग टू बी आइडियल फॉर दिस पेशेंट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, टंग कैंसर्स में टंग निकाली जाती है, राइट राइट, बिकॉज कैंसर टंग के अंदर ग्रो हो रहा है. अब इफ यू नो, टंग इज अ सुपर ऑर्गन जो मूव करता है, जिसके ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स है, जो सेंसेशन देता है, एवरीथिंग इज Lot देयर of इन द tiny टंग, राइट. blood इट्स vessels. लाइक वन सुपर ऑर्गन, सुपर हीरो. राइट अब टंग को अगर मूव करना है तो उसके रिकंस्ट्रक्शन में हमें उसको ऐसी चीज से रिकंस्ट्रक्ट करना है विच इज वेरी थिन, विच इज वेरी सॉफ्ट, जो टंग की मूवमेंट में इंटरफेयर नहीं करे, राइट. So what we do, we go and take the thinnest skin of the body, or one of the thinnest part of the body, that is your forearm. Your forearm is very thin. यूजुअली कलाई जो बोली जाती है या wrist जो बोला जाता है, wrist के एरिया का dimension, muscular या bone, is usually very narrow, even in males, even in females. Females में it is narrower. तो हम वहां से skin और muscle harvest करते हैं so that जब ये skin और muscle donate होके रिसिपिएंट साइट पे जाके फिक्स होंगे, तब टंग की मूवमेंट में इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए. एंड हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? पेशेंट को बोलने आना Correct, चाहिए, correct. स्वॉलो करने आना चाहिए. So, जब टंग का मूवमेंट अच्छा होगा तब हम वो रिकंस्ट्रक्शन सक्सेसफुल मानेंगे. दैट्स द अमाउंट ऑफ प्लानिंग दैट गोज इनटू रिहैबिलिटेशन, एंड these things are extremely taken for granted राइट by a lot of people. आई एम श्योर, बिकॉज एज अ नॉन मेडिको मैं जब ये सारी चीजें सुन रहा हूँ या आप जब बता रही है बहुत सारी चीजें, तो आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज व्हाट Yeah. मस्ट बी गोइंग ऑन. Yeah. आपने कहा माइक्रो नर्व्स, माइक्रो वेन्स, ऑल द ब्लड वेसल्स. आई मीन इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट एंड इट्स अनइमेजिनेबल फॉर अ लेमैन टू कि ऐसा भी हो सकता है. तो जैसे आपने कहा कि कौन से पार्ट में ट्यूमर है और कौन सा पार्ट रिमूव किया जा रहा है, उसके ऊपर से यू डिसाइड कि कौन से पार्ट से डोनर फ्लैप आएगा. Correct. क्या साइज मैटर करता है इसमें? इज इट जस्ट द पार्ट ऑफ लाइक यू नो, आपने जैसे कहा कि थिकनेस है, थिननेस है, तो हाउ डज द साइज प्ले अ रोल इन साइज ऑफ द ट्यूमर एज वेल एज द साइज ऑफ द फ्लैप? हाउ डज इट प्ले अ रोल? हाउ डू यू डिसाइड ऑन Major role. It's a major role. Size of the flap जो हार्वेस्ट होता है and size of the defect should be usually same. राइट Yeah, size of the flap can be 10% up than the size of the defect. It should never be short. शॉर्ट टेलरिंग है ये. Right. आप अगर कुछ सिलने के लिए दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि ज्यादा रखना, हम Right. उसको छोटा कर सकेंगे, कम मत करना, हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, राइट. Correct. If you're stitching a shirt, या वेरी ट्रू. keep some margin so that I can loosen it off if it is not fitting me. It is a artistic tailoring जो हम बॉडी में कर रहे हैं डे एंड नाइट पेशेंट्स को. एंड फ्लैप का साइज एंड डिफेक्ट का साइज मेजर किया जाता है लिटरली एक रूलर लेके वाओ. ड्यूरिंग द सर्जरी. वो रूलर से जब मेजरमेंट्स आते हैं, मिलीमीटर ऑफ मेजरमेंट्स भी हम रिकॉर्ड करते हैं कि ये 24.5 है तो 24.5 ही रहेगा वो. इट कैन नॉट बी 24, yeah. इट कैन नॉट बी 23 ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. अगर 24.9 है तो इट इज गुड. राइट वो कॉन्टूर हो जाता है, हम उसको मोल्ड कर देते हैं उस डोनर फ्लैप को, राइट. सो डिफेक्ट के 101 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मैप करते हैं एंड उसको एग्जैक्टली डोनर के अंदर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. दैट्स एक्चुअली, आई से दिस टू माय पेशेंट्स एंड आई से दिस इन हिंदी, कि ये गणित है. हम ये गणित लगाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमने जो टैली किया था वो टैली हो रहा है थिएटर में. राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. जैसे आपने कहा डोनर साइट, रेसिपिएंट साइट, एंड जैसे आपने कहा टैली फ्रॉम द हार्वेस्टिंग साइड एंड एज वेल एज ऑन द रेसिपिएंट साइट सॉरी. इसके साथ साथ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट क्रॉप्स अप इन माय माइंड इज कि क्या ये डोनर साइट फ्लैप किसी और से लिया जा सकता है, जो होता है जनरली हमने सुना है लिवर ट्रांसप्लांट के केस में या ऑर्गन डोनेशन के केस में, सम अदर पर्सन कैन डोनेट टू द पर्सन हु रिक्वायर्स इट. तो क्या कैन दिस बी एप्लीकेबल इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं.
Okay. I'll tell you why. जब दूसरी बॉडी से डोनेशन लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू या अ पार्ट ऑफ लिवर और अ पार्ट ऑफ किडनी और द होल किडनी या एक ऑर्गन, तब आपकी बॉडी को उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है. यूजुअली बॉडी रिजेक्ट्स इट. बॉडी के लिए वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है एंड Right. वो उसको रिजेक्ट कर देती है. रिजेक्शन का सिंपल मीनिंग रिएक्शन होता है. आपकी बॉडी में एक रिएक्शन होगा और वो एक फॉरेन बॉडी की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट? सो लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में जब हम ये ट्रांसप्लांट करते हैं, बिकॉज ये उन पेशेंट्स के लिए ओनली लाइफ सेविंग ऑप्शन है, तब हम उन पेशेंट्स की बॉडी की इम्यूनिटी को टेम्परली शट कर देते हैं, तो रिएक्शन आता ही नहीं. वी कॉल इट इम्यूनोसप्रेशन. Right. योर इम्यूनिटी सप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टेम्परली, सो दैट वो नया ऑर्गन धीरे 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 एक्सेप्ट होके जेल हो जाए. कैंसर पेशेंट्स में दूसरे बॉडी से अगर डोनेशन लेना है तो इम्यूनोसप्रेशन करना ही पड़ेगा. इट इज द सेम रूल. कैंसर ऑलरेडी इज एन इम्यूनोसप्रेसिव फिनोमिनन इन द बॉडी. वो ग्रो एक जगह होता है मगर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को धीरे धीरे इम्यूनोसप्रेस करने की कोशिश करता है. उसके ऊपर इफ यू पुट द पेशेंट ऑन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, Right. it's a massive failure. It will fail. Everything will fail. Organs will start shutting. एक एक करके एक एक organ धीरे धीरे बंद होने लग जाएगा. So no. And as I told you, when we have that liberty of the miracle of the universe, why not take it from your own body? Absolutely. एंड जब से ये डोनेशंस एंड प्लास्टिक सर्जरीज करना शुरू हुई है पेशेंट्स में, इट्स ऑलवेज यू डोनेटिंग योरसेल्फ. आपकी बॉडी आपको ही डोनेट कर रही है. वो बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट. All right. So immunosuppressant वाला point perfectly आपने explain किया है. तो it I think it very easily answers the question कि आप ये donor site flap किसी और से ना लेते हुए, as you said, the body is miraculous enough that it has provided donor sites for yourself. So it's a completely independent process. पर now the next question that crops up is कि for example आपने बताया कि टंग के रिकंस्ट्रक्शन के लिए फोरआर्म से फ्लैप लिया जा सकता है. टंग का जो फंक्शन है, टेस्टिंग, स्पीकिंग, swallowing, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या ये फोरआर्म से लिया हुआ पार्ट वो फंक्शन कर पाएगा? Reconstruction is restoring the form and function, but it is not magic. Definitely not. Tongue का example लेते हैं. Your question had about it. So, tongue, as I told you, is a super organ. उसमें एक muscle है. It has a pink surface, taste receptor, sensation, what not. You name it and it has it. It's like bang, bang, bang. Superpower, right? Now, when you're replacing a tissue on the tongue, जिस पार्ट में रिप्लेसमेंट हुआ है वो पार्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके टंग का फंक्शन आगे ले जाएगा. बट ये जो स्मार्ट स्विचेस है, टेस्ट एंड सेंसेशंस एंड एवरी रिसेप्टर, यू कैन फील द हॉट फूड, यू कैन फील द कोल्ड फूड, सारे स्मार्ट स्विचेस रिप्लेस हो जाएंगे 100% लाइक अ फैक्ट्री रीसेट. That is usually not the case. Think of it like a super batsman or a very high ranker batsman getting replaced with an all-rounder. One all-rounder has replaced that batsman for some reason. Ultimately, आप win होने वाले हो क्योंकि वो contributory team effort है आपका. पूरी टीम मिला के आपको जितवा देगी. So remaining tongue is the team. Right. And the person who's coming like a donor is that all-rounder, player जो is going to give you that exact function back. Correct. And, I'll tell you this, Yash, कि 6 months down the line या 2 years या 5 years down the line जब patients मेरे पास follow-up के लिए आते हैं ना, उनके दिमाग में ये चीज नहीं रहती है कि उन्होंने क्या खोया है. उन्होंने जो पाया है ना, they are extremely grateful and most of the times very very happy about it. Got it. So all is well that ends very very Absolutely. well Absolutely. in such cases. Yeah. You said it very rightly कि pink surface है tongue. And the skin from the forearm is the normal regular skin color. Now, in terms of the identity or in terms of the appearance of the person, will that part
when it is fixed in the tongue, will it be very prominently visible? There's a color difference, or how do you set it right? We don't set it right. Okay. The body sets it right. Okay. Your body is a beautiful negotiator. Negotiating and adaptability जो भगवान ने human body में दी है, it is surpassing every other function of your body, Wow. including breathing. So eventually, over the time, in a few months or maybe few years, वो brown skin, वो pink हिस्से के साथ extremely merge हो जाता है, and you will not be able to make out Oh, wow. that it is a donor sitting inside the recipient. Wow. All of this is not what we do. मैं ये नहीं किसका credit लेती हूँ. ये it is the universe that has given it to us. हम बस उस fact को positively exploit कर रहे हैं. True. For the patient's benefit. True. And one last technical question that I have in my mind is, आपने बहुत specifically describe किया कि वो donor site flap निकाला कैसे जाता है. Right. How is it placed in the place that it is supposed to be placed? Like, how is it fixed? That's the next question that I have in my mind. Yeah. I will say it is more than it getting fixed. हम उसको बोलते हैं कि we contour it to the defect. When we write our notes after a surgery, ये exact line use करते हैं कि हम उसको contour करते हैं, हम उसको shape देते हैं. So contouring करके उसको उस जगह पे settle करने के लिए we use specialized stitches. And nobody knows about this कि stitches में 1,125,000 varieties है. Every stitch has a different grade. Stitch के साथ जो एक needle होती है, it's like सुई धागा. Right. वो needle के calibrations 100 है. My God. Stitch के materials 100 है, colors 100 है, function 100 है. So we particularly choose that stitch, which is self-absorbable, जो निकालना नहीं पड़ेगा बॉडी से, जो बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगा, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है ताकि वो खुल नहीं जाए, पेशेंट की बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करे, इनहर्ट मटेरियल हो, क्योंकि अगेन वो एक फॉरेन बॉडी है जो हम बाहर से एक पैकेट में से निकाल के पेशेंट की बॉडी में इंस्टिल कर रहे हैं, राइट. सो ये भी एक अलग स्टडी है which we learn about suturing techniques and stitches. So we use threads, we use needle, we use staplers. जो स्टेपलर्स आप पेपर स्टेपल करने के लिए यूज करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को मेडिकल या सर्जिकल फील्ड में एक्सट्रापोलेट किया है. एंड वी हैव स्टेपलर्स आल्सो. Right. वी यूज स्टेपलर्स एंड ऑल ऑफ दिस इज यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन टू contour that donor flap to the recipient site. Miraculous. I think this is not just it shouldn't be called surgery only. It is art. It is art. It is a skill. It is so many years of practice. And I think जो भी मैं सुन रहा हूँ, it is all just miraculous. Removing one part, fixing it in the defect site, and as you said, contouring it to the requirements of the organ that you are putting it into. Every surgeon has to be an artist. Absolutely. हमारे वो job requirement में unsaid rule It's your most important. You have to be an artist. Yeah. Otherwise, you are nothing. Absolutely. It's like that. As I said, miraculous. And definitely a work of art, work of skill, work of extreme studies and practice over so many years. Before we move to the next segment, एक curious सवाल ऐसा है कि आप ये पूरी जो process है of getting a donor flap and fixing it at the recipient site, will you do this process the same way for somebody as young as say 30-35 or somebody in their 60s or more than that? Hearing this question, I have a nice example to give you. Will you give the same vehicle to a Formula 1 driver and to a person जो सिर्फ convenience driving करते हैं, जो grocery store जाएंगे, जो बैंक जाएंगे? आप वो same vehicle देंगे उनको, दो उनके destination same है, उन दोनों को सेम जगह जाना है, बट यू विल नॉट गिव द सेम व्हीकल टू बोथ ऑफ देम बिकॉज उनके रिक्वायरमेंट्स अलग है उस व्हीकल से, राइट? उनकी स्पीड अलग है, उनके कैलिब्रेशंस अलग है. रिकंस्ट्रक्शंस में हम एज ज्यादा नहीं देखते हैं, हम बॉडी का फिजिकल कंडीशन एंड बॉडी की बायोलॉजी देखते हैं. लोगों को ये लगता है कि अभी 60 साल का आदमी है, इतनी बड़ी सर्जरी करवा के
क्या फायदा है, ये सब करना जरूरी है क्या? ये पेशेंट्स के फर्स्ट फैमिली मुझे पूछती है राइट कि मैडम अभी 65 हो गई है उम्र, अभी ये सब क्यों, अपने को कोई बात नहीं, रहने देते हैं। आई मेक देम अंडरस्टैंड लाइक दिस कि अगर अभी ये जो 65 साल के अज्जा बैठे हैं मेरे सामने, उनके बाजू में अगर एक 35 साल का आदमी बैठा होता जो हेविली ओबेस है, सिगरेट पीता है, सांस नहीं आ रही है, हांफता है, और उसको मतलब खाने पे कंट्रोल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उनका, मैं ये 65-year-old अज्जा में एक बेटर चैलेंजिंग एग्रेसिव रिकंस्ट्रक्शन करूंगी, क्योंकि उनकी बॉडी उसको बेटर रिस्पॉन्ड करेगी। इसका क्या मतलब है? इट इज द बायोलॉजी ऑफ योर बॉडी देन जस्ट द एज। ऑफ कोर्स एज क्यों कंसिडर की जाती है नॉर्मल पब्लिक के लिए? क्योंकि 60-65 इयर्स में यूजुअली लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस या कोई पार्किंसंस या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इवेंचुअली आ जाते हैं, नॉट इन एवरीबडी बट इन मोस्ट ऑफ द पीपल। Correct. तो तब हम हमारी स्ट्रेटजीज को उसके हिसाब से टेलर करते हैं। आई विल होल्ड बैक राइट अ लिटिल। अगर मैं एक डायबिटिक पेशेंट में रिकंस्ट्रक्शन सोच रही हूँ Right. तो मैं टेक्स्ट बुक लेवल पे जाके रिकंस्ट्रक्शन ना करते हुए उसको थोड़ा सा होल्ड बैक करके उसको एक नया तरीका दूंगी जिसमें उनको आउटकम ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। सो वी प्लान दैट वे। राइट एंड यू नो पीपल आस्क मी दिस कि मैडम ये 60 साल के हो गए, ये 6 घंटा इनको देने की जरूरत है क्या ऑपरेशन में, 8 घंटा देने की जरूरत है क्या ऑपरेशन में? तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि इनके जितने भी लाइफ के इयर्स बचे हैं, जितने भी डेकेड्स बचे हैं अभी, वो डेकेड्स कितने होंगे और कैसे होंगे वो मेरा सर्जरी के नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करते हैं। अगर मैंने वो 6 घंटा 7 घंटा सही से ऑपरेट किया तो उनके आगे के 20 25 30 50 साल 60 साल सही से बीतेंगे। तो ये 60 साल की कीमत ये 6 घंटा है। सो दैट्स द कन्विंसिंग एंड काउंसलिंग दैट हैज टू गो, बिकॉज मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में प्लास्टिक सर्जरीज के बारे में काफी ज्यादा है। करेक्ट